Today, in today's lecture, we are going to talk about some of the important topics of the synchronous motor. In the start, we will discuss about the starting of a synchronous motor. Second, we will discuss about torque speed characteristics of synchronous motor. And last, the most important topic is the power flow diagram of synchronous motor will be discussed. So let us start with the starting of synchronous motor. And as you all know that synchronous motor is not a self-starting motor. It requires some external mechanisms to start. There are many methods which are employed commercially. However, we will be dealing with methods that are mainly concerned with electrical machines involved in them. So these are four methods. First is using small pony motors. Second, using DC motors. Third, using damper windings. And fourth is as a slip ring induction motor. For small pony motors are in reality are induction motors, which are basically coupled with the synchronous motor. The motor is initially started and as pony motor is started, and this is basically accelerated up to the synchronous speed. Then the supply is given to the synchronous motor, and we basically energize the DC rotor circuit. After this excitation, as the motor is locked into the synchronism, the small pony motor is disconnected from the supply and later on decoupled from the system. And as in this method, by this method, the synchronous motor is started. We can also employ a DC motor for this purpose as well. Initially, the DC motor is coupled with the synchronous motor. It accelerates the synchronous motor up to the synchronism. We normally start the synchronous motor with the three-phase AC supply given it to it, and then we will basically move on to the giving it the DC exciting the DC motor. DC motor is a self-starting motor. It starts up and increases its speeds up to the synchronous speed. As the DC synchronous motor is close to synchronous speed, basically we remove the DC excitation of the motor and give it to the DC excitation to the synchronous motor rotor, and as a result, the motor locks in synchronism with the three-phase rotating magnetic field, and as a result is basically starts to rotate at the synchronous speed. This is the normally structure that is being used here. You can clearly see that we have a DC motor generator, audio generator, and we have a three-phase synchronous motor. So initially DC supply is given to the DC motor and it starts up. Also we give the three-phase supply to the synchronous motor. After reaching near to the synchronous speed, the excitation of the DC motor is removed and that excitation is provided to the rotor of the synchronous motor, and as a result it locks up with the three-phase revolving magnetic field and it is started towards the normal mode. Okay? Now next basically method is a very interesting one. We use damper windings. These windings are basically additionally placed in the synchronous motor rotor, and they are in the form of a squirrel cage rotor that is normally employed in the induction motors. So when it is started, there is a phenomena of induction in the damper windings. Initially, basically, we don't have don't excite the rotor windings of the synchronous motor. So damper windings basically are basically being cut by the revolving field, and as a result currents are induced into it. और squirrel cage construction की वजह से होता है कि चूंकि वो short circuit होते हैं तो huge currents flow into them, and as a result motor excites up speeds up to the synchronous speed. We're near to the synchronous speed. So when it reaches near to the synchronous speed, हम excite करते हैं जो हमारा synchronous motor का rotor है उसको DC
पावर सप्लाई देते हैं, एज ए रिजल्ट वो लॉक ऑन कर जाता है जो आपकी 3 फेज रोटेटिंग सप्लाई है, और मोटर स्टार्ट्स रोटेट ऑन द सिंक्रोनस स्पीड। एंड इन द नेक्स्ट ऑटोमेटिकली जब वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है तो जो आपकी डैम्पर वाइंडिंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डैम्पर वाइंडिंग्स जो है हमने प्लेस किए हैं, और ये इस तरह के फॉर्म में स्क्विरल के स्ट्रक्चर में होती है। तो शुरू में जब ये आप स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एनर्जाइज हो रहा होता है, और कोई डीसी नहीं गिवन होती इन वाइंडिंग्स को, ये जो उसके अंदर गिवन है। तो जब मोटर चलने लग जाती है और स्पीड अप करके पहुंच जाती है सिंक्रोनस स्पीड पे, तो फिर ये सिग्नल्स की स्पीड के ऊपर ये ऑटोमेटिकली इनफेक्टिव हो जाते हैं और आपकी जो नॉर्मल वाइंडिंग है वो चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा स्टेप है। अच्छा, अगर हम मसला ये होता है कि अगर आप स्क्विरल केज मोटर को के तौर पे स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग टॉर्क बड़ी लो होती है। इन केसेस जहाँ पे आपको सिंक्रोनस मोटर के लिए स्टार्टिंग टॉर्क भी चाहिए, आपके साथ कोई इनिशियली ऐसा कनेक्टेड लोड है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि आपको इनिशियली स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होती है। उसके लिए आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली डेल्टा या स्टार में कनेक्टेड होती है। स्लिप रिंग्स के थ्रू आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं रोटर ऑफ दी मोटर के साथ और आप मोटर को स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली मोटर इज स्टार्टेड एज ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और ये एक्साइट अप करती है, पहुंच जाती है बहुत करीब जहाँ पे आपकी होती है सिंक्रोनस स्पीड, और वहाँ पे आप ये करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंसेज हैं इनको आउट कर देते हैं, और ये जो यहाँ पर डीसी सप्लाई है इसको यहाँ पे इन कर देते हैं। और इसके नतीजे में जब ये डीसी सप्लाई आप देते हैं तो जो आपका एक्साइटर है, जो रोटर है, वो जो है आपका चलना शुरू हो जाता है, और ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये दे आर आउट ऑफ द मोटर सर्किट, और आपकी मोटर लॉक इन कर जाती है सिंक्रोनस स्पीड के साथ, और एज ए और स्टार्ट हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक और मेथड है जो उसमें यूज़ किया जाता है। Okay, next we will discuss about the top speed of the motor characteristics of the induction motor। और आपको पता ही है कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है ऐसे लोड के साथ ऑपरेट की जाती है जिनको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, जहाँ पे आपको बेसिकली यू कैन नॉट वेरी द स्पीड ऑफ द मोटर, दैट इज द मेन हर्डल यू हैव। सेकेंडली, मोटर जो है वो पावर सिस्टम के साथ कनेक्ट की जाती है, और वो दैट बिहेव्स एज ए इनफाइनाइट बस बार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मोटर जो है वो आपके पावर सिस्टम के मुकाबले में इतनी छोटी होती है कि उसकी वजह से पावर सिस्टम की वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। उसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि अगर फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाएगी ना, या वोल्टेज वेरी कर जाए, तो जो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड वो चेंज हो जाती है। That is the most important thing that you must understand कि it must be connected to a infinite bus bar। It means that कि जब सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो और वो ड्रॉ करे करंट लाइन पे से, तो उसके नतीजे में आपकी जो बस वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, नन एट ऑल, कोई फर्क पड़े, कुछ भी ना फर्क पड़े। ये सबसे अहम है, क्योंकि अगर वो फर्क पड़ेगा तो फिर आपकी मोटर की स्पीड ही चेंज हो जाएगी। जब वो स्पीड चेंज होगी तो फिर वो आपके लिए फिजिबल नहीं रहेगी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। The rotating speed of motor is interlocked with frequency of the system. Due to this, the speed of motor remains constant irrespective of the load varied on motor. This is a diagram showing the torque speed characteristics, and you can see only a single line represents this. Basically, it operates on a single speed. So you keep on increasing the load on the motor, and it more or less runs on the same speed. आप देख सकते हैं कि रेटेड टॉर्क है, फिर पुल आउट टॉर्क है। पुल आउट टॉर्क वो टॉर्क होती है जहाँ पे सिंक्रोनिज्म ब्रेक हो जाता है, यानी जो सिंक्रोनस स्पीडों से ब्रेक हो जाता है। नॉर्मली 150 टाइम्स टू 200 टाइम्स ऑफ द रेटेड मोटर जो है आपकी जो टॉर्क होती है वो उसके करती है। ये मैंने यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन दी हुई है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड इट इज 0%। सिंक्रोनस मोटर के लिए 0% होता है, और मोटर्स के लिए मे बी कोई वैल्यू होती है। तो डिफरेंट टॉर्क जो इन्वॉल्व होती हैं वो है स्टार्टिंग टॉर्क है। ये इट परटेन्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ मोटर टू प्रोवाइड टॉर्क इन द स्टार्टिंग। वैसे तो आपको पता है कि सेल्फ स्टार्टिंग ही नहीं होती, लेकिन अगर किसी मैकेनिज्म की मदद से आप प्रोवाइड करते हैं तो ये भी स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। रनिंग टॉर्क वो है जो रनिंग मशीन जब रनिंग में है, मोटर के साथ लोड इंगेज है तो जो टॉर्क को प्रोवाइड कर रही होती है वो रनिंग टॉर्क है। पुल इन टॉर्क ये है जो जब मोटर को सिंक्रोनिज्म में लाया जाता है, सिंक्रोनस जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, उस वक्त जो टॉर्क होती है उसको हम पुल इन टॉर्क कहते हैं। और जब
रोटर को पुल आउट किया जाता है उससे, तो उसको हम पुल आउट टॉर्क कहते हैं। ये मैक्सिमम टॉर्क है जो मोटर डेवलप कर सकती है। यानी इससे आगे जैसे जाते हैं तो मोटर पुल आउट कर जाती है सिंक्रोनिज्म से और कम्स टू स्टैंड स्टिल, यानी रुक जाएगी, चलना बंद कर देती है। तो ये बड़ा अहम है, इस चीज़ को बड़ा क्लियर अप होना चाहिए कि ये मैक्सिमम टॉर्क है जो मोटर डेवलप कर सकती है। So very important diagram, this is power flow diagram highlighting कि मोटर को जब इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या है। We can clearly see the input is in electrical energy and output in the form of mechanical power जो हमें मिल रही होती है। इन बिटवीन जो लॉसेस, डिफरेंट लॉसेस होते हैं। सबसे पहले लॉसेस तो I2R लॉसेस हैं, ये वाइंडिंग के अंदर होते हैं। सबसे बेसिक, क्योंकि वाइंडिंग की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से I2R लॉसेस होते हैं। इनको कॉपर लॉसेस भी कहते हैं, ठीक है। दे इंक्रीज एज यू इंक्रीज द करंट, जैसे जैसे आपका करंट बढ़ता जाएगा ये इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये करंट डिपेंडेंट होते हैं। सेकंड जो है आपके पास कोर लॉसेज हैं। कोर लॉसेज जो होते हैं वो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को सम अप करते हैं, और दीज आर मोर और लेस कांस्टेंट। ये कोई इतना बढ़ते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप मोटर की फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखेंगे और वोल्टेज भी कांस्टेंट रखेंगे। तो ये दो चीज़ें जिसके ऊपर नॉर्मली कोर लॉस डिपेंडेंट होता है। तो चूंकि वो तो कांस्टेंट होती है तो ये भी कांस्टेंट होता है। मैकेनिकल लॉसेज में आपके पास फ्रिक्शन लॉस है, वाइंडेज लॉस है, जो दो इंपॉर्टेंट लॉसेज हैं जो मोटर के अंदर अप्लाई करते होते हैं। दे आर रिलेटेड टू एवरी मोटर दैट यू आर बेसिकली हैव स्टडीड। एंड लास्ट आर द स्ट्रे लॉसेज। ये बाकी तमाम जो लॉसेज हैं उनको स्ट्रे लॉसेज की मद में रखा जाता है। तो ये हमारे पास जो है आज का डिस्कशन थी, ना होपफुली this completes and sums up our discussion related to synchronous motor. Thank you.